Hey everybody, welcome back again. So in this topic, we are going to see the differences and comparison between bioinformatics career versus biomedical career. So here we are going to compare both the courses, and at last we are going to see which has more scope or which is better. So let's start our topic with the very first topic, that is biomedical sciences. So firstly we are going to see about the biomedical sciences, and after that we'll compare it with bioinformatics. So starting with the biomedical sciences, what do you understand by biomedical sciences? अगर आप बायोमेडिकल साइंसेस को देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन है जिसमें एक ट्रीटमेंट को डेवलप किया जाता है, किसी भी एक डिसीज़ के लिए एक ट्रीटमेंट को देखा जाता है, एक न्यू टेक्नोलॉजी के सामने आते हैं और एक न्यू इन्वेंशन होता है. दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस. मीन्स एक ट्रीटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज़. किसके लिए ट्रीटमेंट होता है? दैट इज गोइंग टू बेनिफिट द पब्लिक हेल्थ. सो बायोमेडिकल साइंसेज अल्टीमेटली जो भी करियर प्रॉस्पेक्ट्स है, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बेनिफिट पब्लिक हेल्थ. कौन कौन से डिसिप्लिन इसमें इंक्लूड होते हैं? यू कैन सी वायरोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, जेनेटिक्स एज वेल एज माइक्रोबायोलॉजी. सो इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट इंक्लूड्स ऑल दीज डिफरेंट एरियाज. करियर क्या है इसमें? यू कैन गो फॉर पब्लिक हेल्थ, यू कैन गो फॉर रिसर्च, यू कैन गो फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, you can go for sales as well as you can go for education. So this is about biomedical sciences, means as a science that is dealing with medical field, means ultimately it is going to enhance the public health, and you can say in the area of public health. So that is biomedical sciences, means ultimately we are going to come up with some kind of technology invention that is going to find a particular treatment for a disease. So this is all about biomedical sciences. Now the next is institutes to study. So here we are talking about career. So here career means we are talking about academic career as well as after your academics, what will be the job profile. So firstly we'll look into what are the institutes to study. So if you are looking for master courses or bachelor courses to study in the field of biomedical sciences, then what should be your choice of institute? So let's see. So यहाँ पे मैंने कुल 3 इंस्टीट्यूट को रखा है जो कि बहुत अच्छे हैं, तो आप देख सकते हैं. दैट इज़ ACBR, Delhi University, that is a part of DU. So if you see the full form of ACBR, that is Ambedkar Center for Biomedical Research. The next is Acharya Narendra Dev. The third is SSBS, that is in Pune. And if you see the full form, that is Symbiosis School of Biomedical Sciences. So this is specifically for this field, that is biomedical sciences. Now let's see what courses is being provided in ACBR Delhi University. And if you see, you will find you will have 2 options here. You can go for master's degree, or also you can go for MSc or PhD, that is a combined degree. So either of 2 courses you can choose for your career. Coming to the next college, that is Acharya Narendra Dev College, and here you can see you can get bachelor's, master's as well as PhD course. So all 3 different courses are provided here. That is a second college that I have mentioned here, that is again a part of DU. So this is about Ambedkar College, that is ACBR, where MSc as well as MSc along with PhD is you can say provided. And you can say here Acharya Narendra Dev, you have 3 options: bachelor's, master's as well as PhD course. Coming to the last, that is Symbiosis School of Biomedical Sciences, that is SSBS. Here you can get academic program as well as a research opportunity. So if you are someone who is looking to work in the field of biomedical sciences and has done all its, you can say, academic career, you have pursued all your qualification, then you can go and conduct and enroll for a research opportunity in, you can say, SSBS. But if you are looking for academic positions, so here many academic programs are there, many academic courses will be there, so you have to see for that, and accordingly you can enroll. आपको देखना है कि आपका choice क्या है, and you can enroll for that. So this is all about the institute that you can choose to study for your bachelor's, master's as well as PhD in biomedical sciences. The third is job profile. आपको एक BSc या MSc या PhD करने के बाद आपको कौन कौन से करियर प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, कौन कौन सा जॉब प्रोफाइल है. तो यहाँ पे मैंने कुछ 12 जॉब प्रोफाइल्स को मेंशन किया है, जहाँ पे मैं उनकी एवरेज पे सैलरी के साथ लेके आई हूँ. तो आप देख सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट,
अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन योर एवरेज बेस पे विल बी $51,280। तो ये मैंने निकाला है जहाँ से डॉलर्स में है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको इंडियन रुपी में कर सकते हैं और एक आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि एवरेज बेस पे कितना है। लेकिन अगर आपने अपना बीएससी, एमएससी और पीएचडी कर लिया है बायोमेडिकल साइंसेज में एंड नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर बायोटेक्नोलॉजीज देन यू विल गेट दिस पे। यू कैन सी द एवरेज पे दैट इज मेंशन हियर $69,035। So here you can see biomedical lab technician. So here you can see the average salary of lab technician that is mentioned here. And if you are applying for a biomedical researcher, suppose if you have worked and pursued your degree in biomedical sciences, now if you want to work as a researcher, so you can see the average base pay that is given here, that is $65,779. If you want to work as a biomedical scientist, then you can see the base pay that is mentioned here for biomedical scientist. Clinical scientist, you can see the base pay is here. So you have many different plethora, or you can say career opportunities where you can actually apply after studying this biomedical sciences. Clinical scientist, I have mentioned that is a pay, you can see that is $60,353. You can see forensic science technician. So accordingly, you can see the base pay for every post that is different. You can see and accordingly you can apply for this post. And also ये depend करता है कि आपने किस post के लिए आपने कौन सा degree लिया है, only then you will be applying for that particular post. तो आप देख सकते हैं forensic science technician, genetic counselor, microbiologist, nanotechnologist, रिसर्च साइंटिस्ट, जोलॉजिस्ट। तो आपके पास इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मीन्स यहाँ पे मैंने 12 करियर अपॉर्चुनिटीज़ को मेंशन किया है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। और भी बहुत सारे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखे, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पे है, जिनका जो बहुत ज़्यादा करियर प्रोफाइल है, उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप देख सकते हैं फोरेंसिक साइंस टेक्नीशियन का क्या पे है, उसके बाद जेनेटिक काउंसलर यू कैन सी अकॉर्डिंगली क्या पे है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या पे है यहाँ पे यू कैन सी, नैनो टेक्नोलॉजिस्ट का क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कंपेयर कि कौन सा जॉब में कितना ज़्यादा पे है। तो आपको एक अंदाज़ा लग सकेगा कौन सा जॉब में ज़्यादा अट्रैक्टिव सैलरी, आपको किस फील्ड में जाना है। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जहाँ पे सैलरी अच्छी होती है वहीं पे जाते हैं। तो आप इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कितना है। अगर आप ज़ूलॉजिस्ट देखोगे तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया पर हावर का, दैट इज़ $14 पर आवर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका भी यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट एरिया है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे उनका मैंने बेस पे भी लिखा है। तो आप इन बेस पे को रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सर्च करना है तो आप बिल्कुल नेट में सर्च कर सकते हो, आपको इसके बारे में बहुत डिटेल यू कैन से एक इंसाइट मिलेगा, एक इन्फो मिलेगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। मानो अगर आपने कोई बायोमेडिकल साइंसेस किया, अगर आपको इनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी पसंद आ रही है तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो, इनके बारे में डिटेल जान सकते हो और सैलरी भी देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जॉब प्रोफाइल्स दैट यू विल हैव आफ्टर स्टडिंग बायोमेडिकल साइंसेस। नाउ कमिंग टू द टॉप रिक्रूटर्स, कहाँ कहाँ मैंने यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स को मेंशन किया है, मीन्स कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स है, कहाँ पे आपका मेन हो सकता है, कहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। तो उसके लिए मैंने मेंशन किया हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, यू कैन अप्लाई फॉर मेडिकल रिसर्च काउंसिल, you can also apply for a NHS, that is including NHS blood and transplant, that is NHSBT, and also you can apply for UK Health Security Agency, that is UKHSA. So these are the top recruiters that you can apply for, you can say for a job post after you study your bachelor's, master's or PhD in biomedical sciences. तो मैंने यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल मेंशन की थी वो मैंने पूरा सबका साथ में किया था, BSc, MSc, PhD। अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर वीडियो में उसके साथ आएंगे कि पीएचडी करने के बाद आपके पास कौन कौन से रोल होते हैं स्पेसिफिकली आफ्टर एमएससी एंड आफ्टर बीएससी। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया, एक जनरलाइज वीडियो। नाउ इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस जॉब प्रोफाइल की पीएचडी के बाद क्या होता है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम बिल्कुल आपकी बात को सुन करके एक नए वीडियो के साथ सामने आएंगे। तो ये तो रही बायोमेडिकल
बायोमेडिकल साइंसेस की बात, जहाँ पे हमने देखा बायोमेडिकल साइंसेस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जहाँ पे बहुत सारी यू कैन से रिसर्च एरिया और फील्ड कवर होती हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, हमने यहाँ पे 3 मेजर इंस्टीट्यूट देखे जो कि पुणे में है और 2 दिल्ली में है। हमने देखा जॉब प्रोफाइल्स क्या होना चाहिए, हमने कॉमन जॉब प्रोफाइल्स देखा, और हमने देखा क्या क्या टॉप रिक्रूटर्स हैं, कहाँ पे सच में आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन हायर करता है बायोमेडिकल साइंसेस के ग्रेजुएट्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोमेडिकल साइंसेस. Now let's come and compare this with bioinformatics. And if you see about bioinformatics, so everyone is aware about bioinformatics using computational tools and biology and to analyze the biological data. That is what the function of bioinformatics. So application, what is the application of bioinformatics? That is tools of computational biology. Means we have to use the tools of computation and we have to analyze the, you can say, biological data. So it is used to analyze biological data. Also, you can see this is again an interdisciplinary field. That's why we are having many different career opportunities here. And the interdisciplinary field, you can see it includes computer science, as we are talking about computational tools. Computational means computer wala tool. Computational tools means it will include computer science, mathematics hai, physics hai, as well as biology. Means we are utilizing all these fields and ultimately we are analyzing the biological data. तो बायोमेडिकल साइंटिस्ट में क्या है, हम सारे टेक्निक्स के साथ सामने आते हैं, एक ट्रीटमेंट के लिए सर्च करते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट एक पब्लिक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो. वी आर गोइंग टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर डिसीज. बट इफ़ यू टॉक अबाउट बायोइन्फॉर्मेटिक्स मीन्स ये भी एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ होती है. हाउ? विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल टूल्स. Now let's come to the top institutes that is there to study for bioinformatics. And these institutes I have mentioned here, you can search for all these institutes. So these are the top institute that is according to the NIRF ranking 2022. So this year only NIRF ranking was done, and accordingly this all colleges, they are ranked at, you can say, top position. The first is Mirinda House, New Delhi. तो सबसे पहले न्यू दिल्ली का कॉलेज है, दैट इज़ मिरिंडा हाउस. द सेकेंड इज सेंट जेवियर्स कॉलेज, दैट इज़ SXC मुंबई. द थर्ड इज स्टेला मैरिस कॉलेज, दैट इज़ इन चेन्नई. द फोर्थ इज जामिया मिलिया इस्लामिया, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली. एंड द फिफ्थ इज पारुल यूनिवर्सिटी, दैट इज़ इन वडोदरा. तो यू कैन सी ऑल दीज टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज फ्रॉम वेयर यू कैन परस्यू योर बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैरियर. Now this is just about the 5 colleges. Now again, अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल बताया जाए कौन कौन से टॉप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कॉलेज हैं जहाँ से आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो, BSc, MSc और PhD, तो आप बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो जो भी आपकी क्वेरी हो, और हम उनके साथ ये भी बताएंगे कि उनके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो आपकी जैसी भी क्वेरी हो, आपका जैसा भी नीड हो, आप बिल्कुल बता सकते हैं ताकि हम उस वीडियो को कर सकें. तो यहाँ पर सिर्फ मैंने कॉलेजेस को मैंशन किया है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल सकते हैं. थर्ड इज जॉब प्रोफाइल. बायोइन्फॉर्मेटिक्स को करने के बाद कौन सी जॉब प्रोफाइल आपको मिलेगी. यू कैन सी यू कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. तो यहाँ पे मैं फिर जनरलाइज वे में बता रही हूँ कि एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिग्री को करने के बाद आपको कौन सी जॉब प्रोफाइल मिलती है. सो यू कैन अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड इफ़ यू सी द एवरेज सैलरी दैट इज़ ₹10 lakh. So you can say that is per annum, that is 10 lakh per annum, near about 10 to 11, or you can say. The second is bioinformatics research scientist. So after you complete your PhD, you can apply for this research scientist post. That is for, you can say, the salary that will be ₹9.8 lakhs per annum, means 81,000 per month. So you can see this is just the average सैलरी. सो मैंने यहाँ पे जितना भी एवरेज सैलरी बताया है ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है, वेरी करता है, एंड ऑल्सो इट वेरी सिटी टू सिटी. हो सकता है एक सिटी में एक पोस्ट का सैलरी बहुत अच्छा, एक सिटी में नहीं हो, तो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट भी वेरी करता है. थर्ड इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट. आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एवरेज सैलरी है फ्रॉम 2 to 15 lakhs. You can also apply for a bioinformatics engineer, जहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए, नहीं तो एक टेक्निकल डिग्री होना चाहिए. एंड यू कैन सी द सैलरी दैट इज अट्रैक्टिव पे, दैट इज 3.9 lakhs to 51 lakhs. So again this is a range that I have mentioned. तो अगर आप ये मिनिमम लेके चलोगे दैट इज मैक्सिमम रेंज. Also you can apply for a computational biologist post where you will have a salary, you can see per year, that is package mentioned, that is ₹10 lakh. So again it will be in the range of ₹10 lakh to 11
lakhs. So again I'm mentioning that I'm here showing all of the average salary, means that can vary, right? ये vary कर सकता है हर city और job के हिसाब से कहाँ पे आप job कर रहे हो. You can also work as a database programmer, जहाँ पे you can see salary of 1.9 lakhs to 11.2 lakhs, and at last you can see pharmacogenomics, where you can work with a drug profile, and you can see that salary is 6.5 to 12 lakhs per annum. So this is all about the job profile that you can have after pursuing your MSc, BSc or PhD in bioinformatics. So again I'm mentioning the जनरलाइज जॉब प्रोफाइल जो कि आपको एक कोर्स के बाद मिलेगा, ठीक है. तो आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट PhD MSc. So here you can see the top recruiters. Actually this is top recruiters, or you can write top by startup that have been started in, you can say 2022 for bioinformatics. अगर आप चाहते हो कि आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए एक टॉप स्टार्टअप में जा कर के काम करो, तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ अट्रैक्टिव टॉप स्टार्टअप लिखे हैं जो कि अभी भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में रिसेंटली डेवलप हुए हैं, चालू हुए हैं. तो आप देख सकते हो. द वेरी फर्स्ट इज बेंचलिंक. अगर आप बेंचलिंक के लिए देखोगे तो किस में वर्क कर रहा है? इट इज़ अ इंफॉर्मेटिक्स प्लेटफॉर्म टू एक्सेलरेट, मेजर एंड फोरकास्ट R&D फ्रॉम डिस्कवरी थ्रू बायो प्रोसेसिंग. तो इनका मेन फील्ड ऑफ वर्क ये है, आप देख सकते हो. इलूसिडेटा, यू कैन से इट इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ड्रग डिस्कवरी. यू कैन सी द थर्ड वन इज सिंथैकी, दैट इज एन ऑटोमेटेड बायोलॉजिकल रिसर्च. सो दैट इज वर्किंग फॉर, यू कैन से, ऑटोमेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च. द फोर्थ इज एक्सेलरा, आप देख सकते हो, डेटा साइंस टू एम्पावर लाइफ साइंसेज इनोवेशन. Fifth is Fabric Genomics, that is a global healthcare platform for genomics-driven precision medicine that is using AI algorithms. And the last is Excel Biosciences, that is a technologies for improving potency in cell-based therapy. So this is basically working for cell-based therapy. तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है. आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो किया, लेकिन फिर भी आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है? आपका सेल बेस्ड थेरेपी में है, आपको कोई मेडिसिन से रिलेटेड काम करना है, आपको कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड काम करना है, R&D, ड्रग discovery. So accordingly you can work for all these startup that has been recently started. So this is all about the bioinformatics as well as biomedical career, where we have seen what is bioinformatics and medical sciences. We have seen the top institutes to study for both of these courses. We have also seen the job profile and ultimately the top recruiters for biomedical sciences and the top startups that has been recently established for bioinformatics. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत डिटेल में बताया जाए, आप चाहते हैं कि आपको डिग्रीज बताई जाए, कौन कौन सी डिग्री किस कॉलेज में अवेलेबल है, या कौन सा कॉलेज, यू कैन से, या कौन सी प्रोफाइल एक PhD के बाद अवेलेबल होता है, एक जॉब प्रोफाइल MSc के बाद आपको मिलेगा या BSc के बाद, तो अगर आपका क्वेरी आएगा तो हम बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ आएंगे. बट अभी जो भी मैंने वीडियो में बनाया, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है. अगर आपको बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. बाय टेकिंग. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग.